Hello everyone. So today we will study basic concept of circular motion and then we will go into the details of banking of roads. We'll derive the expression for minimum and maximum velocity for a banked road. Okay. And first we will begin with the very basic concept of circular motion, what all accelerations are required and with all these basic details. Okay. So let us begin with it. So what is circular motion? So when a particle or object moves in a circular path, we call it that it is in circular motion. So first basic definition is path should be circular. Okay, then we will call it as it is performing circular motion. Okay, so circular motion, I will write it as Cm. It is basically, it can be classified in two parts. One is uniform circular motion, okay, and next is non-uniform circular motion. Now what is the difference between them? Okay, so uniform circular motion, uniform means something is constant. So what is constant? In uniform circular motion, speed of the particle is constant or uniform, that means it is not changing. Okay, so its speed is uniform. And as we know that particle in circle, when it moves at each point, its velocity is directed towards it tangent. Okay, so at every point its direction of velocity is changing. That means its velocity is not constant. Velocity is a vector quantity. Okay, so velocity is not constant. Now if velocity is not constant, that means it is what? Its acceleration is not zero. That means it is an accelerated motion. Accelerated motion. Okay, now when we come to the non-uniform circular motion, again here its speed along the tangent will be either increasing or decreasing. Okay, so it is moving in circle, so its speed may increase or may decrease. It is not constant. It was constant in uniform circular motion, but here speed is not constant. Speed is not constant. Okay, again it is a circular motion, so at every point velocity is directed towards its tangent to the circle, so its velocity is not constant. Velocity is also not constant, and if velocity is not constant, that means we can say that its acceleration is also not constant. That means it is an what? Accelerated motion. Okay, so both these are accelerated motion. So let us talk about the acceleration of the circular motion. Okay, so one basic thing and very important thing we must remember, that when a particle is moving in a circular motion, it must have at least one component of its acceleration towards the center. Okay, why it is like that, we'll go into detail. ऐसा ही क्यों होना चाहिए कि इसके जब कोई पार्टिकल सर्कल में घूमता है तो उसका एक्सेलरेशन का एक कंपोनेंट हमेशा, एटलीस्ट एक कंपोनेंट हमेशा सर्कल की तरफ होना चाहिए, सेंटर की तरफ होना चाहिए. तो ऐसा क्यों होना चाहिए, इस पर भी अपन बात करेंगे अभी. ठीक है, तो अभी के लिए क्या अपन को लिखना है कि एटलीस्ट वन कंपोनेंट, एटलीस्ट वन कंपोनेंट, एटलीस्ट वन component of acceleration should be towards the center of the circle. Okay, so this is mandatory condition. Now its direction of acceleration is towards the center, so we call it as centripetal acceleration. What we call is centripetal acceleration. Centripetal acceleration, because centripetal means center seeking, towards the center. Okay, so its direction is already we have known, towards center, or we can call radial, means towards radius. Okay, and its magnitude is, acceleration is vector quantity, so its direction we have defined. Its magnitude is AC equal to v square by r. This is a very well known result. We can prove this also. Okay, but we'll not go into that detail now. So this is the acceleration of the circular motion. Now we'll come to the uniform circular motion and non-uniform circular motion. In uniform circular motion, as we know that its speed is constant, that means no acceleration along the tangent.
Okay, so we can say that its tangential acceleration is 0. Now it is performing circular motion, that means it must be having one acceleration along its center, and that is AC. So it is v square by r. Okay, so when we come to the non-uniform circular motion, this is for uniform circular motion, this is for non-uniform circular motion. Okay, here the AT means tangential acceleration. Okay, so we know that its speed is also changing along the tangent. Okay, so its AT will be dv by dt, and again it is performing circular path, circular motion. So we can say that its AC will be there, AC cannot be 0, and its magnitude already we know v square by r. Again if we say the net acceleration, so it is AC here and towards the center. That means if any particle is performing uniform circular motion, then we can say that it is having a acceleration of net acceleration of AC, that is v square by r, and directed towards the center. And if any particle is performing non-uniform circular motion, if its speed or its speed is changing, then we can say that it will be having two component of velocity, one is along the tangent, another is along the center or along the radial. So if we want to find out the A net, so acceleration is vector quantity, so we must add them vectorially. Okay, so this will be A net. Now our focus will be uniform circular motion here. Okay, so our focus will be what? Uniform circular motion. What we have learned so far about this motion, that its path will be circular, its acceleration will be AC, that means centripetal acceleration, magnitude will be v by r, and direction will be towards the center. This we have learned as of now. Okay, so now we will learn, or we will study further, that why this direction should be towards the center. Okay, so this can be proved with mathematically also, this result v square by r and direction radial direction, but we will try to understand how basically circular motion takes place. Okay, so why a particle moves in a circular motion? Why circular motion? Okay, so before that we have to study the one property of inertia, that is Newton's first law. So what is that property? That any particle, okay, any particle have tendency to move in a circular straight line path with constant velocity if no force is applied upon it. Okay, this is inertia. मतलब कि कोई भी पार्टिकल है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन में जाना चाहेगा कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ, कांस्टेंट स्पीड के साथ में, अगर उस पर कोई भी अपन बाहर से एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाते. ठीक है, ये इनर्शिया की प्रॉपर्टी है. तो इनर्शिया की वजह से भाई मेरा पार्टिकल ऐसे स्ट्रेट लाइन में जा रहा था. ठीक है, अब अगर मुझे इसको सर्कुलर मोशन परफॉर्म करवाना है तो ये अपने आप तो करेगा नहीं, इनर्शिया की वजह से करेगा नहीं. मुझे क्या करना पड़ेगा? कोई ना कोई इस पर एक्सटर्नल फोर्स ऐसे लगाना पड़ेगा जो कि इसको खींच के इस सर्कल में ले आए. ठीक है, समझ रहे? तो स्ट्रेट लाइन से अगर मुझे सर्कल में मोशन करवाना है, दैट मीन्स आई मस्ट अप्लाई सम एक्सटर्नल फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर. Okay, at least one component should be towards the center so that it can perform what? Circular motion. So अब थोड़ा सा समझ में आया होगा कि ये AC जो है वो सेंटर की तरफ क्यों होता है. ठीक है, तो सेंटर की तरफ एक्सेलरेशन सर्कुलर मोशन के लिए होना बहुत ज़रूरी है, मतलब मैंडेटरी कंडीशन. इसके बिना सर्कुलर मोशन तो होगा ही नहीं. ठीक है, तो इस एक्सेलरेशन को अपन सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बोलते हैं, और जो ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन प्रोवाइड करता है, ये प्रोवाइड कोई ना कोई फोर्स ही करता होगा. अगर इसका एक्सेलरेशन टुवर्ड्स द सेंटर है, दैट मीन्स इसकी इस पार्टिकल के ऊपर कोई ना कोई फोर्स लग रहा होगा टुवर्ड्स द सेंटर, तो उस फोर्स को बोला जाता है सेंट्रीपिटल फोर्स. सेंट्रीपिटल फोर्स ये कोई न्यू टाइप का फोर्स नहीं है. ओके, ये बेसिकली एक नाम, जैसे अपवर्ड फोर्स, डाउनवर्ड फोर्स, जैसे mg डाउनवर्ड लगता है. ठीक है, तो वो अपन बोलते हैं कि डाउनवर्ड फोर्स इस पे mg है. इसी तरह से अगर कोई ना कोई फोर्स, जैसे कोई भी फोर्स ऐसे नॉर्मल फोर्स है, फ्रिक्शन फोर्स है, अगर वो सेंटर की तरफ लग रहा है, तब अपन बोलेंगे कि वो मेरा क्या है, सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह एक्ट कर रहा है. ठीक है, तो ये कोई न्यू टाइप का फोर्स बिल्कुल नहीं है. नाउ ये तो बेसिक सी बातें होगी सर्कुलर मोशन के बारे में. ठीक है, अभी अपन जानेंगे कि बैंकिंग क्या होता है.
ठीक है, ये समझ में आ गया कि भाई सर्कुलर मोशन क्यों बनती है, सर्कुलर मोशन सर्कुलर पाथ फॉलो ही क्यों होता है बेसिकली, तो ये भी अपन को समझ में आ गया ना। व्हाट इज़ बैंकिंग? तो बैंकिंग आपने बहुत सारे हाईवेज या रोड पे देखा होगा जहाँ पे भी टर्निंग होती है ऐसी, जहाँ पे भी टर्निंग होती है और मतलब जहाँ पे हाईवे होती है, जहाँ हाईवे होता है और टर्निंग होती है, वहाँ पे क्या है, स्पीड बेसिकली हाईवे पे व्हीकल्स की स्पीड ज़्यादा रहती है। ठीक है, तो ऐसी टर्निंग पे अपन को पता है अगर टर्निंग बहुत मतलब टर्निंग पे अगर बहुत ज़्यादा स्पीड से चलाएंगे तो अपन क्या चल जाते हैं, स्किड होकर बाहर गिर जाते हैं। ठीक है, तो उसको अवॉइड करने के लिए क्या करते हैं अपन, उसका जो आउटर एज है रोड का उसको थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं, किसकी तुलना में, इनर एज की तुलना में। ठीक है, तो जैसे ये रोड है, ऐसा ये फ्लैट है, तो अपन क्या कर देते हैं, ऐसा कर देते हैं बैंकिंग में, ऐसा मतलब गाड़ी मेरी ऐसे जाएगी। ठीक है, मतलब ये आउटर एज है, इसको क्या थोड़ा सा ऊपर कर दिया। ठीक है, ये वहीं का वही रहा, इसको थोड़ा सा टेढ़ा कर दिया बेसिकली रोड को। ठीक है, तो अगर मैं ये मतलब इसका बैक साइड से व्यू बता रहा हूँ, इस टाइप से रहेगा। ठीक है, तो ये बेसिकली बैंकिंग ऑफ रोड होता है। तो ये क्या है भाई, बैंकिंग क्या है, द phenomena in which the outer edges are raised for the curved roads above the inner edges to provide the necessary centripetal force, ठीक है, to the vehicle so that it can take safe turn। ठीक है, अपन ये सब करते क्यों हैं? ठीक है, ये है क्या बेसिकली, पहला चीज़ तो ये व्हाट इज बैंकिंग। ठीक है, तो रेजिंग आउटर एज ऑफ रोड, कर्व्ड रोड, ओके, कर्व रोड का आउटर एज को रेज करना। नाउ क्यों करते हैं, वाई, टू गेट द सेंट्रिपिटल फोर्स या सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन। अपन को पता है कि अपन को बेसिकली ये जो कर्व रोड है दैट मीन्स इट इज़ ए पार्ट ऑफ अ सर्कल, मतलब यहाँ पे हमको सर्कुलर मोशन परफॉर्म करवाना है। अगर सर्कुलर मोशन परफॉर्म करवाना है तो एटलीस्ट वन कंपोनेंट अपना किसकी तरफ होना चाहिए, सेंटर की तरफ। तो वो कंपोनेंट लाने के लिए हम क्या करते हैं, बेसिकली बैंकिंग का यूज़ करते हैं। तो वाई, टू प्रोवाइड सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन आता है कि हाउ, कैसे, ये कैसे काम करता है बेसिकली। ठीक है, तो ये मतलब ऐसा इसका आउटर एज रेज करने के कारण मेरा बैंकिंग क्या बोलते हैं, बैंकिंग करने के कारण मेरा सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन कहाँ से मिल जाता है, उसको अगर स्टडी करना है तो उससे पहले अपन को क्या करना पड़ेगा भाई, उससे पहले अपन को कि भाई नॉर्मल जो हॉरिजेंटल रोड होता है वहाँ पे व्हीकल कैसे टर्न लेता है वो अपन को स्टडी करना पड़ेगा। ठीक है, तो वील छोटा सा एक बार ये देख लेते हैं कि सर्कुलर टर्निंग ऑन हॉरिजेंटल रोड। ठीक है, सर्कुलर टर्निंग ऑन हॉरिजॉन्टल रोड्स। ठीक है, सो सर्कुलर टर्निंग ऑन हॉरिजॉन्टल रोड। तो सपोर्ट मेरा रोड अभी क्या है, रोड कैसा फ्लैट है, जैसा नॉर्मल रोड अपने रहता है, कहीं से दोनों की जो दोनों एज है ना, दोनों आउटर एज वो सेम लेवल पे बेसिकली। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल रोड है, तो इस पर व्हीकल कैसे टर्न लेता है अपन को वो समझना पड़ेगा। ठीक है, सो सपोज मेरी कार है वो इस तरह से जा रही है। ठीक है, तो अपन को पता है कि ये क्या है, एक सर्कुलर पाथ को फॉलो कर रही है। ठीक है, अगर सर्कुलर पाथ को फॉलो कर लिया मतलब ये सर्कुलर मोशन में है, और अगर सर्कुलर मोशन में है इसका मतलब ये है कि इसके ऊपर कोई ना कोई सेंट्रिपिटल फोर्स लग रहा है। ठीक है, बिना सेंट्रिपिटल फोर्स के सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर ही नहीं सकती। ठीक है, तो अपन को पता है कि पार्टिकल की नेचुरल टेंडेंसी क्या है कि वो स्ट्रेट लाइन में मूव करना चाहता है कांस्टेंट स्पीड के साथ में, अगर उसके ऊपर अपन ज़्यादा उसके ऊपर अपन एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाए तो। ठीक है, अगर लगाते हैं और सेंटर की तरफ लगाते हैं तो वो किस तरह से मतलब बेसिकली सर्कुलर मोशन में घूमने लगता है अगर सेंटर की तरफ उस पर एक्सेलरेशन लगे तो। ठीक है, या फिर फोर्स लगे तो। ठीक है, सो नाउ यहाँ पे अपन को ऐसा कोई भी फोर्स नहीं दिख रहा है जो सेंटर की तरफ होगा। ठीक है, खाली एक ही फोर्स है, और वो फोर्स कौन सा है, बिटवीन द व्हील्स एंड द टायर, सॉरी बिटवीन द टायर्स एंड द रोड। ठीक है, टायर्स एंड रोड के बीच में जो फोर्स है, और वो कौन सा फोर्स है भाई, फ्रिक्शन फोर्स। ठीक है, वही फोर्स है जो मुझे कहाँ की तरफ मतलब क्या प्रोवाइड करेगा, बेसिकली सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन प्रोवाइड करेगा। कौन सा फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स। ठीक है, सो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, ओनली फ्रिक्शन फोर्स, एंड बाय न्यूटन सेकंड लॉ वी नो दैट F बराबर ma। तो हियर ma विल बी mac, सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन। और ये सब अपन जो बात कर रहे हैं वो किस में करेंगे, अभी से अपन जो भी पूरी डिस्कशन करें वो किस पे करेंगे, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में। अपन ये मान के चलेंगे कि इट्स स्पीड इज कांस्टेंट। ठीक है, सो मतलब इसमें एक ही कंपोनेंट होगा AC का। ठीक है, नाउ
तो इस नेट फोर्स क्या है, फ्रिक्शन फोर्स F और मास ऑफ दिस कार, ओके, एंड AC इज व्हाट, V स्क्वायर बाय R. व्हाट इज दिस R? R इज बेसिकली द रेडियस ऑफ दिस रोड. सपोज इस रोड का सेंटर कहीं यहाँ आता है, इसका रेडियस R है, ठीक है. तो जहाँ पे मेरी कार घूम रही है वहाँ से अपन को रेडियस लेना पड़ता है ऐसे, तो ये R इस टाइप से, ठीक है. तो ये इसका सर्कल का बेसिकली रेडियस हो गया. नाउ अपन को एक चीज़ पता है कि यहाँ से अपन, ये अपना एक एक्सप्रेशन आ गया. अपन को एक चीज़ पता है कि जो फ्रिक्शन फोर्स है वो सेल्फ एडजस्टिंग फ्रिक्शन होता है. यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान रखना, ये जो फ्रिक्शन फोर्स है वो कैसा फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स है, ठीक है. स्टैटिक क्यों है, क्योंकि मेरा जो व्हीकल है वो इधर या इधर मूव थोड़ी हो रहा है. व्हीकल तो मेरा सीधा स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, ठीक है. तो इधर इधर मूव नहीं हो रहा है, लेकिन मेरा फ्रिक्शन क्या कर रहा है, देखो इसमें दो चीज़ें हो रही है, ठीक है. इनर्शिया क्या चाहता है कि मैं इसको स्ट्रेट लाइन में आगे लेके जाऊँ, और मेरा उसको सर्कुलर पाथ में कौन खींच के ला रहा है, फ्रिक्शन. तो दो चीज़ों के बीच में टक्कर है, फ्रिक्शन एंड इनर्शिया, ठीक है. इनर्शिया बोलता है कि मैं इसको स्ट्रेट लाइन में लेके जाऊंगा, और फ्रिक्शन बोलता है कि नहीं, मैं इसको खींच के सर्कुलर मोशन करवाऊंगा, ठीक है. तो अगर इसका इनर्शिया बोले तो मोमेंटम एक तरीके से, ठीक है. तो अगर मेरा इसका वेलोसिटी बहुत ज़्यादा है, मतलब इसका इनर्शिया बहुत ज़्यादा रहेगा, ठीक है. और मुझे पता है कि फ्रिक्शन क्या है, एक लिमिटेड फोर्स है. फ्रिक्शन क्या है, स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा, और स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू जो है वो एक लिमिटेड रहती है, मतलब बहुत एकदम इनफाइनाइट नहीं रहती है. दिस इज इट्स मैक्सिमम वैल्यू विल बी म्यू एन, ठीक है. म्यू इज कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, एन इज नॉर्मल फोर्स, उस पर भी अपन अभी आएंगे, ठीक है. तो इस मैक्सिमम वैल्यू इज म्यू एन, और इसको अपन बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन. मतलब फ्रिक्शन इनफाइनाइट नहीं हो सकता है, ठीक है. तो मेरी स्पीड जो है वो यहाँ पे लिमिटेड होगी. ऐसा नहीं कि मैं किसी भी 500-600 किसी भी स्पीड से चलाऊँ गाड़ी ऐसी टर्निंग पे, ठीक है. वो इस स्पीड किस पे डिपेंड करेगी भाई, कि रोड कितना रफ है, बेसिकली रोड पे कितना फ्रिक्शन है, ठीक है. अगर फ्रिक्शन कम रहेगा तो इसका मतलब ये फ्रिक्शन फोर्स कम रहेगा. अगर फ्रिक्शन फोर्स कम रहेगा तो इनर्शिया डोमिनेट कर जाएगा, और पार्टिकल क्या हो जाएगा तेरा, ऐसे घूमने की बजाय क्या हो जाएगा, एकदम स्ट्रेट लाइन में चल जाएगा. मतलब वो पुल आपका कर्व तोड़ के एकदम बाहर स्कीड हो जाएगा. इसको क्या बोलेंगे, स्कीड, ठीक है. तो अगर मेरा इनर्शिया डोमिनेट करता है, ठीक है, ओवर द फ्रिक्शन, देन माई कार विल वॉट, स्कीड. दिस इज द कंडीशन. नाउ यहाँ पे एक और चीज़ ये है कि मुझे मेरे फ्रिक्शन को है जो मैक्सिमम वैल्यू अप्लाई करनी है, कि मैक्सिमम कितना वैल्यू हो सकता है भाई. उसके बाद अगर फ्रिक्शन के मैक्सिमम वैल्यू के बाद भी मेरा इनर्शिया डोमिनेट कर रहा, मतलब तो उसको इसकी स्कीड होना ही है. लेकिन मुझे क्या करना है, इसकी मैक्सिमम वेलोसिटी निकालनी है, कितनी सेफ वेलोसिटी, मैक्सिमम वेलोसिटी तक मैं चल सकता हूँ, ठीक है. तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मैक्सिमम फ्रिक्शन लेना पड़ेगा, क्योंकि उस फ्रिक्शन के बाद तो मेरी वो वेलोसिटी काम में आने वाली ही नहीं है. जितना मैक्सिमम हो सकता है वो फ्रिक्शन लूँगा, और उस पर क्या वेलोसिटी आती है वो मेरी मैक्सिमम वेलोसिटी होगी. सिंपल, ठीक है. सो यहाँ पे मैं जो ये फ्रिक्शन की वैल्यू लूँगा, इसी एक्सप्रेशन पे, इक्वेशन 1 पे आ जाओ वापस, F बराबर mv स्क्वायर बाय आर. सो मेरा फ्रिक्शन क्या आएगा, म्यू एन, टू बी प्रिसाइज व्हाट, म्यू एस एन, ठीक है. म्यू, ये जो म्यू एन में लिख रहा हूँ वो बेसिकली क्या होना चाहिए, म्यू एस होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे स्टैटिक फ्रिक्शन है, ठीक है. कोई बात नहीं, भी अपन म्यू लिखेंगे इसमें. म्यू एन इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर. ये क्या हुआ, हॉरिजॉन्टल इक्विलिब्रियम हुआ, ठीक है. वर्टिकल इक्विलिब्रियम की बात कर लो, बेसिकली कार इस तरीके से है. अगर आप इसको पीछे से देखेंगे, ठीक है, तो पीछे से अगर आप देखेंगे तो इसके सेंटर की तरफ फ्रिक्शन लग रहा है, ठीक है. ऊपर इसका क्या लग रहा है, नॉर्मल रिएक्शन ड्यू टू दी ग्राउंड सरफेस, ठीक है. और इसमें नीचे क्या लग रहा है, mg लग रहा है. कौन लगा रहा है, ग्रेविटेशनल पुल, ठीक है, अर्थ की वजह से. तो ये तो मैंने इसका इक्वेशन तो लिख दिया, नेट फोर्स F बराबर ma से, ठीक है. बट इसमें वर्टिकल इक्विलिब्रियम है, ठीक है. वर्टिकल डायरेक्शन में ऊपर नीचे तो मूव नहीं कर रही है कार, उछक तो रही नहीं है, जंप तो कर नहीं रही है, तो वर्टिकल इक्विलिब्रियम है. दैट मीन्स m बराबर n बराबर mg, ठीक है. ये मेरे लिए सेकेंड इक्वेशन, इसको मैं पुट करूँगा इसमें, ठीक है. सो मेरा क्या आएगा, म्यू mg इक्वल टू mv स्क्वायर बाय आर. अब ये ध्यान रखना, मैंने म्यू एन लिखा है, मैक्सिमम फ्रिक्शन लिखा है. दैट मीन जो वेलोसिटी आएगी वो क्या आएगी, मैक्सिमम वेलोसिटी आएगी. उस वेलोसिटी से ज़्यादा मैं नहीं चला सकता इस कार रोड पे कार, ठीक है. सो अगर अपन यहाँ से निकालेंगे तो मेरा m से m गया, देन v विल बी इक्वल टू म्यू आर जी, म्यू आर जी, ठीक है. तो बेसिकली ये क्या, v मैक्स है, v मैक्स है, ठीक है. तो वेलोसिटी जो है वो हमेशा क्या होनी चाहिए, इससे कम ही होनी चाहिए. वेलोसिटी शुड बी लेस देन इक्वल टू व्हाट, म्यू आर जी,
ये आ गया मेरा मैक्सिमम। इस वेलोसिटी से अगर मैं चलूँ तभी मैं बच पाऊँगा, नहीं तो मैं मेरी कार अगर उससे ज़्यादा मेरी वेलोसिटी रही तो मेरा इनर्शिया डोमिनेट कर जाएगा फ्रिक्शन से, क्योंकि मैंने मैक्सिमम फ्रिक्शन ऑलरेडी ले लिया है। तो उसके बाद क्या होगा कि मेरा कार स्किड कर जाएगा, बाहर चल जाएगा टर्निंग से, स्ट्रेट लाइन में मूव करने लगेगा, एक तरीके से टर्न नहीं लेगा। ठीक है, तो वो सेफ टर्न नहीं हुआ। नाउ इसमें क्या क्या आ रहा है भाई, म्यू आ रहा है, आर आ रहा है और जी तो कांस्टेंट है ही। ठीक है, तो पहला चीज़ क्या है, अगर म्यू है, ठीक है, म्यू अगर कम है दैट मीन्स अगर फ्रिक्शन कम है, अगर जैसे बारिश के वेट रोड, जैसे बारिश के दिनों में क्या है रोड गीला रहता है, ठीक है, तो फ्रिक्शन कम हो जाता है। तो आपने देखा होगा बहुत सारी बाइक स्कूटी वगैरह स्लिप हो जाती है। वो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि वो वेट रोड है, अब फ्रिक्शन डाउन हो गया है तो बेसिकली म्यू डाउन हो गया है। ठीक है, म्यू डाउन हो गया तो ये ओवरऑल जो मेरी वी मैक्स की वैल्यू है, वी मैक्स की जो वैल्यू है ओवरऑल वो डाउन हो गई है। दैट मीन्स अपन को जिस पहले से सपोज 90 की स्पीड से चला सकते थे, अब 90 की स्पीड से नहीं चला सकते, अपन को 60-70 पे पहुँचाना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी भी अगर 90 पे चलाएंगे तो मेरा क्या होगा, इतना फ्रिक्शन तो मेरे को मिल नहीं पाएगा, तो मैं स्किड आउट हो जाऊँगा। ठीक है, दूसरा चीज़ क्या है और क्या आ रहा है इसमें, आर। ठीक है, अगर आर कम है दैट मीन शार्प टर्न है। कैसा टर्न है, शार्प टर्न। तो शार्प टर्न पे भी क्या होता है, अपन को स्पीड बहुत कम करनी होती है, क्योंकि जैसे ही इसमें आर कम होगा वी मैक्स की वैल्यू कम हो जाएगी। ठीक है, तो जितना बड़ा टर्न होगा उतना सेफ टर्न होगा। एकदम जैसे शार्प टर्न हुआ तो क्या होगा, अपन तुरंत बाहर चल जाएंगे, ज़्यादा स्पीड से जाएंगे तो मेरा इनर्शिया तुरंत डोमिनेट कर जाएगा। ठीक है, तो इन बातों का अपन को ध्यान रखना होता है। नाउ अपन ने एक चीज़ देखी कि जब अपन हॉरिजॉन्टल रोड पे टर्न लेते हैं तो अपन किस पे डिपेंड है, ओनली एंड ओनली फ्रिक्शन पे। ठीक है, अगर फ्रिक्शन है, ये जो रोड है, ठीक है, इसमें कौन सा फोर्स जो है वो सर्कुलर मोशन करवा रहा है, फ्रिक्शन फोर्स। अगर ये फ्रिक्शन नहीं हो तो क्या ये सर्कुलर मोशन करेगा, नहीं। अगर ये सपोज बर्फ़ होता या फिर एकदम फ्रिक्शनलेस सरफेस होती तो मेरी ये कार कभी भी टर्न नहीं ले पाती, हमेशा एकदम स्ट्रेट लाइन में जाती और बाहर चल जाती। क्या करती है, स्ट्रेट लाइन मोशन परफॉर्म करके। इसके पास कोई सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन होता ही नहीं, कोई फोर्स होता ही नहीं इसको सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन देने के लिए। दैट मीन्स इसको कोई भी सर्कल में घुमाता ही नहीं। ठीक है, तो अपन ये बोल देंगे कि हम यहाँ पे हॉरिजॉन्टल रोड पे ओनली किस पे डिपेंडेंट है, फ्रिक्शन पे। अगर फ्रिक्शन है तो मेरा टर्निंग सही होगा, मेरा स्पीड सही आएगा, मैक्सिमम वेलोसिटी ज़्यादा होगी। अगर नहीं है फ्रिक्शन तो फिर मेरा दिक्कत होने वाली है। ठीक है, तो ये चीज़ है। अभी अपन ने जैसे ये जैसे यहाँ पे सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन कौन प्रोवाइड कर रहा है, फ्रिक्शन। लेकिन अपन ने एक बैंकिंग का फेनोमेना पढ़ा था, बैंकिंग की डेफिनेशन पढ़ी थी। वहाँ अपन ने बोला था कि अपन ऐसा चीज़ करेंगे, बैंकिंग करेंगे, उससे क्या मिलेगा, मेरे को सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन मिलेगा। ठीक है, तो इसी फ्रिक्शन से डिपेंडेंसी हटाने के लिए हमने क्या किया, साइंटिस्ट ने क्या सोचा, बैंकिंग के लिए सोचा। ठीक है, बैंकिंग ऑफ रोड। तो मैं आपको एक फ़ोटो दिखा देता हूँ बेसिकली बैंकिंग किस तरीके से होता है, एक मिनट के लिए। हाँ, तो ये जैसे आप भी गूगल पे लिख सकते हैं कि बैंकिंग ऑफ रोड करके, तो आपको फ़ोटो दिखा देंगे। जैसे ये आपको फ़ोटो भी दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो इसमें देखो जो आउटर एज है वो क्या है, ऊपर उठा हुआ है इनर एज की तुलना में। ठीक है, इनर एज नीचे है, आउटर एज ऊपर उठा हुआ है। ये क्यों किया गया है, बेसिकली इसी को बैंकिंग बोलते हैं। ये क्यों किया गया, ये कैसे हेल्पफुल है वो अपन अभी जानेंगे। ठीक है, हाँ भाई, तो बैंकिंग ऑफ रोड। ठीक है, तो बैंक रोड कैसा होता है, जैसे ये मेरा हॉरिजॉन्टल रोड है। ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल रोड है, इसको मैं क्या कर रहा हूँ, आउटर एज है उसको मैं ऊपर उठा दूँगा। ठीक है, तो अगर मैं इसको साइड से देखूँगा तो ये मेरे कैसे दिखने लगेगा भाई, मेरी कार जो ऐसे जा रही होगी, इस तरीके से ऐसे ऐसे सर्कुलर मोशन कर रही होगी। ठीक है, तो अभी आप देखेंगे अगर मैं इसको साइड व्यू में देखना चाहूँगा तो ये इस तरीके का ट्रायंगल बेसिकली बन जाएगा ये, और इस पर ये कार रहेगी। अब आप एक चीज़ नोटिस करेंगे, सपोज ये जो एंगल है वो थीटा है, मतलब थीटा डिग्री से इसको रोड को उठाया गया है आउटर एज से। ठीक है, तो ये एंगल है सपोज थीटा है। तो अगर आप पहले वाले केस में देखेंगे, हॉरिजॉन्टल रोड पे जब था तो उसमें नॉर्मल एकदम ऊपर आता था और एमजी नीचे आता था। ठीक है, तो इस नॉर्मल का कोई भी कंपोनेंट जो है वो अलोंग इट्स रेडियल डायरेक्शन या सर्कल के सेंटर की तरफ इसका नॉर्मल का कोई भी कंपोनेंट नहीं होता था। ठीक है, जबकि आप यहाँ पे देखो, ठीक है, नॉर्मल क्या लगता है, हमेशा दो सरफेस के परपेंडिकुलर लगता है। डेट मीन्स अगर ये मेरी सरफेस है तो नॉर्मल मेरा कैसे लगेगा, ये मेरा नॉर्मल फोर्स है। ठीक है, तो और अगर सपोज मैं इसको ऐसे ऐसे करना चाहूँ, ठीक है, तो ये थीटा है तो मेरा ये भी थीटा हो जाएगा, ये थीटा, ये 90 है, ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा। एक मिनट में आपको दूसरे कलर से समझा देता हूँ। देखो ये मेरा थीटा है, ठीक है, ये मेरा 90 है, ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। ये थीटा है तो मेरा ये भी कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। समझ गए, नहीं समझ गए, नहीं समझ गए।
देखो एक बार वापस समझा देता हूँ, ठीक है। जैसे ये मेरा नॉर्मल फोर्स है, ये मैंने वर्टिकल से खींच लिया, ये मेरा थीटा है, ठीक है। ये तो 90 डिग्री है ही, तो ये कितना हुआ 90 माइनस थीटा। अब मैं ऐसे ऐसे, ये बेसिकली परपेंडिकुलर है तो पूरा एंगल तो ये 90 है, नीचे वाला भी 90 है, तो ये मेरा कितना हुआ, ये 90 माइनस थीटा, तो ये थीटा, ये और ये तो दोनों अपोजिट है ना, तो ये भी मेरा थीटा हुआ, ठीक है। समझ गए नाउ? ओके, सो हाँ भाई, ये मेरा जो एंगल है वो कितना है, थीटा है। अब मैं नॉर्मल के कंपोनेंट कर देता हूँ। एक तो टुवर्ड्स हो जाएगा रेडियल, ये हो जाएगा तेरा एन साइन थीटा। एक हो जाएगा टुवर्ड्स वर्टिकल, ये हो जाएगा एन कॉस थीटा, ठीक है। रिजोल्यूशन ऑफ फोर्स तो अपन को आता है। और इस पर नीचे क्या लग रहा है भाई, एम जी लग रहा है। तो अगर आप अभी एक चीज़ देखेंगे, ये इसकी क्या है, सेंटर की तरफ अपन को क्या देखना पड़ेगा भाई। जैसे मेरा ये रोड है, इस पर सपोज ये कार चल रही है, तो ये जो है वो रेडियल डायरेक्शन होगी मेरी, ठीक है, रोड के परपेंडिकुलर। बेसिकली ये मेरा रोड है ना, तो हमेशा रेडियस कहाँ हो, रेडियस और सर्कमफेरेंस के बीच में कितना 90 डिग्री हमेशा एंगल होता है, ठीक है। तो ये हमें देखना पड़ेगा कि ये जो एंगल है, ये जैसे सर्कल में मूव करिए, तो ये जो मैं रेडियस बना रहा हूँ, दिस इज अलॉन्ग द रेडियस। बेसिकली ये जो फोर्स में बना रहा हूँ वो क्या है, दिस इज अलॉन्ग द रेडियस, ठीक है। नाउ तो अभी अपन यहाँ पे देखेंगे कि पहले तो मेरा नॉर्मल जो हमेशा वर्टिकल हुआ करता था, लेकिन अभी क्या है, नॉर्मल ने एक कंपोनेंट दे दिया किधर, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल। दैट इज गुड। क्यों? कि हमें कोई ना कोई फोर्स का कंपोनेंट सेंटर की तरफ चाहिए, ताकि हमें फ्रिक्शन की डिपेंडेंसी ना रहे, ताकि हमें सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन मिल सके, ताकि हमें सेंट्रीपिटल फोर्स मिल सके। तो यहाँ पे अगर मैं सेंट्रीपिटल फोर्स की बात करूँ, ये सर्कुलर मोशन बिना फ्रिक्शन के भी इसमें जो है वो एक कार सर्कुलर मोशन में मूव करेगी। ये पर अभी तक मैंने फ्रिक्शन की बात ही नहीं की है, ठीक है। तो यहाँ पे जो मेरा सेंट्रीपिटल फोर्स है वो कौन सा फोर्स है, एन साइन थीटा, मतलब नॉर्मल का एक कंपोनेंट है, वो मेरा सेंट्रीपिटल फोर्स का काम कर रहा है अभी के लिए। अभी मैंने फ्रिक्शन को इन्वॉल्व नहीं किया है, ठीक है। तो मेरा ये फोर्स जिंदाबाद है, तो अभी क्या होगा, फ्रिक्शन नहीं होगा, तो अभी ये क्या काम करेगा, मेरा सर्कुलर मोशन में घूमेगा, ठीक है। तो अपन ने क्या पढ़ा था कि बैंकिंग जो क्या प्रोवाइड करता है, सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करता है, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन प्रोवाइड करता है, वो यही चीज़ है। ये देखो, बैंकिंग किया तो मेरे को एन साइन थीटा मिला, अगर बैंकिंग में नहीं करता तो मेरे को एन साइन थीटा नहीं मिलता, क्योंकि नॉर्मल हमेशा क्या रहता है, वर्टिकल डायरेक्शन में रहता, तो मेरे रेडियस की तरफ कोई भी कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई भी कंपोनेंट नहीं आता, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कंपोनेंट आता है तभी मेरा रेडियस की तरफ होगा, सेंटर की तरफ होगा, और तभी मेरा सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन मिल पाएगा ना। ये तो भाई एक चीज़ समझ में आ गई कि अपन फ्रिक्शन से अभी थोड़े से फ्री हो गए हैं। फ्रिक्शन नहीं भी होगा तो भी मैं बैंकिंग करके मेरा जो है सर्कुलर मोशन परफॉर्म करवा दूंगा। नाउ अगर अपन फ्रिक्शन को इन्वॉल्व करें, ठीक है, कि सपोज इसमें फ्रिक्शन भी लगता है तो क्या होता है, ठीक है। तो दो चीज़ समझो इसमें, जैसे ये रोड है, ठीक है, बैंक्ड रोड है, ठीक है। अब वहीं यहाँ पे भी दो ही चीज़ें हैं, एक तो क्या होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स होगा टुवर्ड्स द सेंट्रल, ठीक है, और दूसरा क्या होगा भाई, मेरा इनर्शिया की वजह से क्या बाहर बाहर जाना चाहेगा, ठीक है। सो नाउ इनर्शिया की वजह से क्या होना चाहेगा, ये बाहर घूमना चाहेगा, मतलब ये जो रोड है तो इसकी तरफ इसकी क्या बोलेंगे, रोड के अलॉन्ग जो है वो स्कीड होके एकदम बाहर गिरना चाहेगा। किसके कारण, इनर्शिया के कारण, क्योंकि ये तो स्ट्रेट लाइन में जाना चाह रहा है, ठीक है। इसको घुमा कौन रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। तो अगर मैं ये बाहर कब जाएगा, जब इसकी स्पीड क्या होगी, मैक्सिमम, वी मैक्सिमम। तो अगर हम मैक्सिमम वेलोसिटी की बात करें तो मेरा कार क्या ट्राई करेगा, कार जो है वो आउटर रेस से बाहर आउटवर्ड जाने का ट्राई करेगा, ठीक है। तो मेरा जो फ्रिक्शन होगा वो किधर लगेगा भाई, मेरा फ्रिक्शन होगा वो किधर लगेगा, अलॉन्ग दिस सरफेस और डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। तो वी मैक्स के लिए मेरा जो फ्रिक्शन है वो किधर लगेगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, ठीक है, अलॉन्ग द प्लेन, अलॉन्ग द इंक्लाइन डाउनवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। नाउ अब ये फ्रिक्शन कितना लगेगा, अगेन दिस फ्रिक्शन इज स्टैटिक फ्रिक्शन। विच फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन। क्यों, क्योंकि मेरा इधर और इधर कोई मूवमेंट थोड़ी हो रहा है, मेरी गाड़ी तो ऐसे सीधे जा रही है, इधर और इधर क्या होगा, स्किड होकर बाहर जानी चाहिए, मतलब टायर एकदम परपेंडिकुलर, भाई टायर तो मेरा ऐसे है ना, वो तो ऐसे ऐसे रोल करके जाएगा, ऐसे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में थोड़ी जाएगा। परपेंडिकुलर डायरेक्शन में तभी जाएगा जब इस पर अगर वेलोसिटी बहुत ज़्यादा है, फ्रिक्शन कम है, तो वो घिस के स्कीड होके बाहर चल जाएगा, ठीक है। इसमें कौन सा फ्रिक्शन लगेगा, स्टैटिक फ्रिक्शन बेसिकली, ठीक है। सो नाउ हाँ, कौन सा फ्रिक्शन लगेगा, स्टैटिक फ्रिक्शन। अब एक और चीज़ है कि फ्रिक्शन क्या करेगा भाई जी, ये बाहर जाएगा इनर्शिया के कारण, तो फ्रिक्शन क्या करेगा, इसको रोकेगा, इसको खींच के वापस लाएगा। अब फ्रिक्शन की एक लिमिट है,
सिर्फ फ्रिक्शन इज सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स, तो उसकी एक लिमिट है। ऐसा तो नहीं कि वो इन्फाइनाइट फोर्स लगा के उसको हमेशा रोकेगा, कितनी भी 500 600 कितनी भी स्पीड से चलाओ, है ना, उसकी एक लिमिट है। तो वो लिमिट अगर मुझे निकालनी है कि मैं किस मैक्सिमम वेलोसिटी से इस इंक्लाइन प्लेन पे कार चला सकता हूँ, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ये जो फ्रिक्शन है इसकी मुझे क्या करना पड़ेगी, मैक्सिमम वैल्यू लेनी पड़ेगी। तो मैक्सिमम वैल्यू को क्या बोलते हैं, लिमिटिंग फ्रिक्शन, अगेन म्यू एन, और टू बी प्रिसाइज म्यू एस एन, ठीक है, म्यू एस एन, ठीक है। तो ये बेसिकली मुझे लिमिटिंग फ्रिक्शन रहती है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन लेनी पड़ेगी, क्या निकालने के लिए, मैक्सिमम वेलोसिटी निकालने के लिए। ये चीज़ आप समझ गए, ऐसा क्यों है भाई, मेरे को मैक्सिमम स्पीड से घूमना है ना, बग में इन्फाइनाइट स्पीड घूमूंगा ऑब्वियसली स्किड करके आउट चल जाऊंगा, लेकिन वो स्पीड क्या होगी, जब तक मेरा ये फ्रिक्शन जो है वो होल्ड करके रखेगा। तो फ्रिक्शन कब तक होल्ड करके रहेगा, उसकी मैक्सिमम लिमिट तक। तो अपन इसकी मैक्सिमम वैल्यू ले लेते हैं और फिर वेलोसिटी निकाल देते हैं, वही तो मेरी मैक्सिमम वेलोसिटी हुई इस पर मूव करने की, ठीक है। सो नाउ यहाँ पर अपन को ये पता चला कि मेरा जो फ्रिक्शन है, इसको मैं दूसरे कलर से बना देता हूँ, सपोज रेड कलर से बना देता हूँ, वी मैक्स निकाल रहे हैं, ठीक है। तो फ्रिक्शन किधर होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। अब एक और चीज़ पता है कि ये एंगल थीटा है, ये एंगल मेरा थीटा है, तो ये भी एंगल कितना होगा, थीटा होगा, जेड बन रहा है। तो इधर इसका कंपोनेंट कौन सा आएगा, एफ कॉस थीटा, और डाउनवर्ड कंपोनेंट कौन सा आएगा इसका, एफ साइन थीटा, ठीक है। तो थोड़ी सी मतलब फोर्सेज ज़्यादा हो रहे हैं, मैं इसको एक बार वापस से बना देता हूँ। देखो इस तरीके से ये है इंक्लाइन, ठीक है। अब मैं नॉर्मल फोर्स को सीधा एन कॉस थीटा लिखता हूँ, और इसको मैं सीधा लिखता हूँ एन साइन थीटा, ठीक है। नीचे मेरा एम जी लग ही रहा है, ये थीटा है ही, और नीचे क्या लग रहा है, एम एफ साइन थीटा, और इधर क्या लग रहा है, एफ कॉस थीटा, और कोई फोर्स नहीं है, फ्रिक्शन नॉर्मल एम जी, तीन ही फोर्स है इसमें, ठीक है। सो अगर आप देखेंगे तो ये जो मेरी डायरेक्शन है, कौन सी डायरेक्शन, ये जो फोर्स लग रहे, दो फोर्स एन साइन थीटा और एफ कॉस थीटा, ये मेरे परपेंडिकुलर टू दी सर्कुलर मोशन जो मेरा हो रहा है, सर्कुलर कर्वेचर, उसके परपेंडिकुलर फोर्स लग रहे हैं। और ये जो परपेंडिकुलर फोर्स है मतलब ये किसकी तरफ है, टुवर्ड्स द रेडियस और टुवर्ड्स द सेंटर। तो मेरा सेंट्रीपिटल फोर्स में इसमें एक और कंपोनेंट ऐड हो जाएगा, एन साइन थीटा प्लस एफ कॉस थीटा, ये मेरे क्या है, सेंट्रीपिटल फोर्सेस है, ठीक है। तो अभी वही अपन एफ बराबर एम ए लगा देते हैं, क्या लगा देते हैं, एफ बराबर एम ए, नेट फोर्स एफ बराबर एम ए सी। अगेन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात करेंगे और ओनली ए सी ही आएगा इसमें, ठीक है, ए टी नहीं आएगा। फाइन, नाउ सेंट्रीपिटल फोर्स कौन कौन से है भाई मैं बेसिकली, और इसका नेट एक्सेलरेशन किसकी तरफ है, सेंटर की तरफ। तो मैं एफ बराबर एम ए लगा रहा हूँ, जितने फोर्सेस हैं और जितना एक्सेलरेशन है वो लिखूंगा, और क्या मतलब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में बेसिकली मैं न्यूटन सेकेंड लॉ लगा रहा हूँ, ठीक है। तो कौन कौन से फोर्स है भाई, एन साइन थीटा, एफ कॉस थीटा। तो फोर्सेज आर एन साइन थीटा प्लस एफ कॉस थीटा इक्वल टू एम इज द मास ऑफ द कार, v square by r, v square by r is what, ac, v is velocity, r is the radius of curvature of road, ठीक है। सो अपन को ये भी पता है कि f बराबर क्या लिखना है अपन को, म्यू एन, ठीक है। तो वो भी लिख लो। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, एन साइन थीटा प्लस म्यू एन कॉस थीटा इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर, ठीक है। चाहे तो एन एन कॉमन ले लें, एन एन कॉमन ले लिया, साइन थीटा म्यू कॉस थीटा इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर, ये मेरी क्वेश्चन नंबर 1। अब एक चीज़ बताओ, यहाँ पे जो v निकलेगा वो क्या होगा, v मैक्स, क्योंकि मैंने f क्या ले लिया, म्यू एन, और फ्रिक्शन किधर ले लिया, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। तो मैक्सिमम वेलोसिटी होगी तो फ्रिक्शन किधर एक्ट करेगा भाई, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, क्योंकि कार जो है इनर्शिया क्या चाहेगा, उसको स्ट्रेट लाइन में मूव करवाना चाहेगा, बाहर की तरफ धकेलना चाहेगा, स्किड करना चाहेगा। तो फ्रिक्शन क्या बोलेगा कि भाई अंदर खींच के लाओ, वो फ्रिक्शन ही होगा जो फ्रिक्शन प्लस नॉर्मल का कंपोनेंट, ये दो चीज़ होंगे जो इसको क्या करेंगे, सर्कुलर मोशन परफॉर्म करवाएंगे, ठीक है। तो ये तो मेरा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कर लिया मैंने, एफ बराबर मैंने न्यूटन सेकंड लॉ लगा लिया। अब ये वर्टिकल प्लेन में मतलब कार उचक तो नहीं रही है, ठीक है। तो वर्टिकल प्लेन में तो जो फोर्स है जो बैलेंस होंगे, मतलब ये फोर्स जो होगा वो क्या होगा, इन दोनों फोर्स के बराबर होगा, मतलब एन कॉस थीटा इक्वल टू एन कॉस थीटा इक्वल टू एम जी प्लस एफ, क्या था भाई, एफ साइन थीटा, ठीक है। यहाँ पे भी अगेन एफ की जगह क्या लिखना है, फ्रिक्शन फोर्स की जगह, ये स्मॉल एफ क्या है, फ्रिक्शन है बेसिकली, इसकी जगह क्या लिखना है, म्यू एन, ठीक है। तो एन कॉस थीटा इक्वल टू एम जी प्लस म्यू एन साइन थीटा।
अगेन इसको इधर ट्रांसफ़र कर दो और n कॉमन ले लो, तो n कॉमन लोगे तो क्या आएगा, कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा, ठीक है, इक्वल टू एम जी। यहाँ से n निकालोगे तो क्या आएगा, n इक्वल टू एम जी डिवाइडेड बाय कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा। दिस इज इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब ये जो n की वैल्यू है वो इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर दो, तो क्या आएगा भाई, एम वी स्क्वायर बाय आर इज इक्वल टू n की वैल्यू क्या है, एम जी अपॉन कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा, और ऊपर क्या बच गया, साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा, ठीक है। मैंने इक्वेशन 1 में n की वैल्यू पुट की है। यहाँ से अगर आप m से m काटोगे, ठीक है, और मेरे को क्या निकालना है, वी मैक्स बेसिकली, तो यहाँ से आपका वी मैक्स क्या आ जाएगा, वी मैक्स इज नथिंग बट रूट ऑफ, ये हो जाएगा आपका आर जी, आर इधर चल जाएगा, आर जी साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा डिवाइडेड बाय cos theta minus mu sin theta. This is the value of Vmax, maximum value of velocity with which we can move on a banked road. ओके, ये Vmax है, क्यों है, क्योंकि अपन ने F बराबर F बराबर μ1 दिया है फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है। सो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर मैक्सिमम वेलोसिटी ऑन बैंक्ड रोड। अब एक चीज़ इसमें ध्यान रखने वाली कि आप इस दोनों ऊपर नीचे जो है वो कॉस का डिवाइड दे सकते हैं और इसको एक्सप्रेशन को टेन की फॉर्म में बुला सकते हैं। अब वो तो मैथ्स है तो उसमें कोई वो बड़ी बात है नहीं, अपन को वो कुछ ज़्यादा उसमें नहीं करना है। दिस इज़ द एक्सप्रेशन फॉर मैक्सिमम वेलोसिटी। अब एक और चीज़, अगर मैं अब ये क्या है भाई, हॉरिजॉन्टल रोड पे क्या था, कार जो है वो अगर ज़्यादा स्पीड रहती तो बाहर चल जाती और स्पीड कम रहती तो यहीं पड़ी रहती, कोई नीचे थोड़ी गिरती। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, जो बैंक रोड है, उसमें अगर इतनी एकदम कम स्पीड से चलाओगे तो आप यहाँ से नीचे घुलट जाओगे, ठीक है। आपको क्या हो जाएगा, स्लीपिंग हो जाएगा, बेसिकली क्या हो जाएगा, स्लीपिंग हो जाएगा। तो इसमें दोनों चीज़ डिफाइन करनी पड़ेगी, वी मैक्स और वी मिन, मतलब मैक्सिमम वेलोसिटी और मिनिमम वेलोसिटी दोनों का एक रेंज होना चाहिए कि इस रोड पे चलने के लिए आपको मिनिमम इतनी वेलोसिटी तो चाहिए ही चाहिए। ऐसा क्यों चाहिए, क्योंकि ये टेढ़ा किया हुआ थोड़ा इंक्लाइन रोड है, ठीक है। अगर आप नहीं चलोगे मैक्सिमम वेलोसिटी से मिनिमम वेलोसिटी तो आप नीचे गिर जाओगे, अगर आप मैक्सिमम वेलोसिटी से ऊपर चलोगे तो आप ऊपर स्किड कर जाओगे, दोनों कंडीशन है, ठीक है। तो अगर मुझे मिनिमम वेलोसिटी निकालनी है, क्या निकालनी है, सेकेंड केस फॉर मिनिमम वेलोसिटी, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा भाई, अगेन वही इंक्लाइन, ऐसा मैं साइड भी बना देता हूँ। ये मेरा कार जा रही है, अगर मेरे को भाई मिनिमम वेलोसिटी होगी मतलब क्या होगा, वो कार नीचे गिरना चाहेगा, नीचे गिरेगा तो फ्रिक्शन क्या बोलेगा उसको कि भाई तू ऊपर चल, तो फ्रिक्शन क्या होगा, पहले फ्रिक्शन डाउनवर्ड था, उसी डायरेक्शन में पहले फ्रिक्शन कैसे था, ऐसे था, अब कैसे एकदम अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। तो फ्रिक्शन का इसमें कुछ नहीं हुआ, फ्रिक्शन का डायरेक्शन बस बदल गया, बाकी तो वही, ये नॉर्मल है, ये थीटा है, वही हो जाएगा एन कॉस थीटा, ठीक है, एन साइन थीटा, एम जी, बस आप एफ के कंपोनेंट कर लेना, ठीक है। ये थीटा तो ये भी थीटा, ठीक है, ये इस तरफ क्या होगा एफ कॉस थीटा, ऊपर की तरफ क्या आएगा एफ साइन थीटा, है ना। इस तरह से कंपोनेंट करोगे और वापस अगर आप लाओगे तो आप यहीं, या तो आप इसको क्या कर सकते हो, अगेन क्या बोलते हैं, एफ बराबर एम ए लगा दो, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अगर आप लगाओगे एफ बराबर एम ए सी, तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में दो फोर्स है, एक ये फोर्स एक ये फोर्स, ठीक है। तो मेरा कौन सा टुवर्ड्स द एक्सेलरेशन है, दिस एन साइन थीटा, तो दिस एन साइन थीटा माइनस एफ कॉस थीटा, क्योंकि एफ कॉस थीटा क्या है, एक्सेलरेशन के अपोजिट है, इज इक्वल टू क्या होगा एम वी स्क्वायर बाय आर, ठीक है। दिस इज इक्वेशन 1। अब अपन ने जो पहली इक्वेशन आई थी उससे कंपेयर करो, बेसिकली क्या होगा, ओनली ये एफ की जगह माइनस एफ आई होगा, बाकी सब सेम है। देखो इक्वेशन नंबर 1 कहाँ है, बेसिकली ये जो एक्सप्रेशन आया था एन साइन थीटा माइनस एफ कॉस थीटा, पहले मतलब अभी माइनस कॉस थीटा है, माइनस एफ कॉस थीटा, और पहले क्या आया था प्लस एफ कॉस थीटा, ओनली एंड ओनली जो है वो कौन सा टर्म चेंज हुआ है मेरा, ये एफ की जगह माइनस एफ आया बस, और कुछ नहीं हुआ, ठीक है। सिमिलरली अगर आप वर्टिकल कंपोनेंट की बात करेंगे तो उसमें क्या आएगा भाई, एम जी इक्वल टू ऊपर कौन कौन से फोर्स है, ये दो एन कॉस थीटा प्लस एफ साइन थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे भी आप देखोगे तो ये जो एफ साइन थीटा है वो पहले माइनस का होगा, यहाँ पे प्लस का, मतलब ओनली एंड ओनली साइन का चेंज है। कहाँ गया ये रहा, देखो अगर इधर जाएगा क्या होगा, माइनस एफ कॉस थीटा हो जाएगा बराबर एम जी का, ठीक है। तो पहले भी यही था, बस अभी क्या है, एफ का क्या हो रहा है बेसिकली,
एफ का माइनस एफ हो रहा है, वो अपन वैसे अपन ने देख लिया कि फ्रिक्शन पहले ऐसे था अभी ऐसे। तो जो पहला एक्सप्रेशन है उसमें खाली एफ को माइनस एफ से रिप्लेस करना है। आप ऐसे इक्वेशन बना के भी निकालोगे तो भी वहीं आने वाला है, और अगर आप एफ को माइनस एफ से रिप्लेस करोगे तो भी वहीं आना। और क्या कर सकते हो, मेरा फाइनल एक्सप्रेशन किस में आया, म्यू में आया, एफ में तो आया नहीं, ये जो है वी मैक्स का। तो मैं क्या कर सकता हूँ, इस म्यू को माइनस म्यू से रिप्लेस कर देता हूँ, ठीक है। तो मेरा क्या आ जाएगा, वी मिनिमम आ जाएगा बस। तो वी मिनिमम निकाल लो आप, वी मिनिमम इक्वल टू रूट ऑफ आर जी, देखो क्या था, साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा। तो म्यू को माइनस म्यू करेंगे तो ऊपर क्या आ जाएगा माइनस, नीचे क्या आएगा प्लस, बस साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा और कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा। ये मेरी क्या आ गई, मिनिमम वेलोसिटी की वैल्यू आ गई बेसिकली। इस मिनिमम वेलोसिटी से मुझे चलना पड़ेगा, इससे कम में अगर मैं चला तो मैं नीचे गिर जाऊंगा, ठीक है। तो एक बार आप लिख लो, वेलोसिटी शुड बी लेस देन इक्वल टू व्हाट, मैक्सिमम कितनी होनी चाहिए, आर जी साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा। अब इसमें एक चीज़ और देखो कि जैसे ये ऊपर प्लस है नीचे माइनस है, एक्सप्रेशन लगभग सेम जैसे दिख रहे हैं। तो ऊपर प्लस है नीचे माइनस है, तो मतलब ये टर्म कम होगा ये टर्म ज़्यादा होगा, तो ये ओवरऑल जो है वेलोसिटी की स्पीड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ठीक है। ओवरऑल ये जो टर्म की वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, मतलब ये क्या है मैक्सिमम वैल्यू है। अब आप मिनिमम की अगर बात करोगे तो मिनिमम में क्या ऊपर नीचे प्लस है सेम चीज़ में, ठीक है। मतलब ये वैल्यू है जो कम होगी और ये वैल्यू जो है वो ज़्यादा होगी, प्लस में। ऐसे भी आप याद कर सकते हो अगर आप मिनिमम मैक्सिमम में कन्फ्यूजन है, ठीक है। नाउ हाँ, अब मिनिमम वैल्यू क्या थी भाई इसकी, ये जो ऊपर लिखी गई भाई, रूट आर जी साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा। सो दिस इज माय एक्सप्रेशन, ठीक है। तो ये मेरी मिनिमम और ये मेरी मैक्सिमम स्पीड अलाउड है किस पे, बैंक रोड पे, जिसका एंगल ऑफ बैंकिंग कितना होना चाहिए, अगर थीटा हो तो एंगल ऑफ बैंकिंग कितना, थीटा, और जो म्यू होगा वो क्या होगा, म्यू स्टैटिक बेसिकली, ठीक है। जनरली क्वेश्चन में खाली म्यू दे रखा होता है, ठीक है, तो वो म्यू स्टैटिक ही होता है। फाइन, सो थैंक यू। अगर और कुछ डाउट हो तो आप कमेंट करके मुझे बताइएगा, ठीक है। थैंक यू।